السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ اس سے قبل ڈبل بیڈ رومز مختص کرنے کا عدالتی کیس روک کر عدالت نے کلیئرنس دے دی تھی۔ حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے منسٹر کوارٹر میں چار مینار، ملک پیٹ اور چندرائن گٹا حلقوں کے استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈ روم کے پٹوں کو تقسیم کیا۔ پروگرام میں GHMC کے میئر گدوال وجے لکشمی، راجیہ سبھا ممبر انل کمار یادو، MLAs اور دیگر اہم لیڈروں نے شرکت کی۔ GHMC کے 2 BHK مکانات کے مکینوں کے لیے علاقہ مختص کرنے کی اسکیم کے حصے کے طور پر GHMC نے رنگا ریڈی ضلع کے مہیشورم منڈل کے منکال گاؤں میں 2 BHK مکانات کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے۔ کلکٹر رنگا ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے 1730 استفادہ کنندگان کی فہرست شائع کی ہے اور منکال فیز 2 کے مقام پر 2 BHK مکانات الاٹ کیے ہیں۔ اس کے حصے کے طور پر چار مینار، ملک پیٹ اور چندرائن گٹا حلقوں میں مستحقین میں پٹے تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ امبر پیٹ میں 134، بہادرپورہ 294، بنڈلا گوڑا 155، چار مینار میں 209، سعید آباد 206 اور دیگر علاقوں میں 28 ڈبل بیڈ رومز۔ کل 1024 مستفیدین میں سے 75 نے وزیر پونم پربھاکر کے ہاتھ سے پٹے حاصل کیے۔ باقی ماندہ مستحقین میں پٹے مقامی MRO آفس میں تقسیم کیے جائیں گے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ BRS کے مسلم قائدین کی کانگریس حکومت کے خلاف مہم، جوبلی ہلز میں کانگریس باقی وعدے کارڈز کی تقسیم۔ تلنگانہ کی سیاست میں اقلیتوں کے مسائل ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں BRS کے مسلم رہنماؤں نے ریاستی کانگریس حکومت کے خلاف ایک منفرد مہم کا آغاز کیا۔ نماز جمعہ کے بعد مختلف مساجد کے باہر عوام میں کانگریس باقی وعدے کارڈز تقسیم کیے گئے، جن کے ذریعے عوام کو کانگریس حکومت کی وعدہ خلافیوں اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ مسیح اللہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس حکومت مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی کر رہی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اپنے حلقے کوڑنگل میں سڑک کی توسیع کے نام پر قبرستانوں اور مذہبی نشانات چلے کو مسمار کر دیا گیا، جو کہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں وقف بورڈ کا CEO تعینات نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وقف کے اہم امور ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ امام اور مؤذنین کی تنخواہیں بند ہیں، جس سے درجنوں خاندان معاشی تنگی کا شکار ہو رہے۔ BRS قائدین کا کہنا ہے کہ کانگریس حکومت نے انتخابات سے قبل اقلیتوں سے جو وعدے کیے تھے وہ آج تک پورے نہیں ہوئے، اور اب جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں دوبارہ جھوٹے وعدوں کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ BRS عوام کے درمیان جا کر سچائی سامنے لاتی رہے گی اور مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرتی رہے گی۔ آج پورے ریاست تلنگانہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیسی ناانصافی ہو رہی ہے۔ خاص کر کوڑنگل جیسے خود CM ریونت ریڈی کی کانسٹیٹنسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مساجدوں کے ساتھ کیا حال چال ہے۔ ایک عاشور خانے کو شہید کیا گیا ہے، ساتھ قبرستانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میں یہ بہت ہی لمحے فکر کا ہے، کیونکہ آج پورے ہندوستان میں یہ بولی جاتی ہے کہ کانگریس مسلمانوں کی دوست ہے۔ یہی دوستی دکھا رہی ہے کیا کانگریس ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں، اور خصوصی کوئی چیز کا آپ دیکھ سکتے ہیں نا، امام معظم کی تنخواہیں ٹائم پہ ہے۔ وقف بورڈ تو بالکل سو چکا ہے، نہ وقف بورڈ کا CEO ہے، 1 سال ہونے کو آیا ہے، وقف بورڈ کے ایک پروسیڈنگ نہیں دی جا رہی ہے۔ میں خاص کر مسلمانوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کی حالت کیا ہے، اردو اکیڈمی کی حالت کیا ہے۔ میں کوئی چیز بولنا، بتانا، کسی کو تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر کام آپ لوگ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی تنقید کیوں کریں گا۔ آج کوڑنگل جیسے ایشو میں
मसाजिद एक के बाद एक आप देख सकते हैं। इतने बड़ा आशुर खाना था, मेन रोड का आशुर खाना रोड वाइंडिंग के नाम पे शहीद किया गया। मोइनाबाद की जो मस्जिद थी, आज तक वहां गए कई लोग, खुद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उनके साथ जाकर वहां नमाज भी पढ़े, लेकिन आज तक कोई काम वहां पे हुआ नहीं। ना तो एक मुसल्ली ना वजू कर सक रहा है वहां पे, ना नमाज पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। मैं खासकर खुसूसी मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, तेलंगाना के मुसलमानों से, आप जो कांग्रेस का सही चेहरा है आज देखने में आ सकता है, आज देखिए, पहचानिए, केसीआर साहब को पहचानिए। गुज़श्ता केसीआर साहब अपने 10 साल हुकूमत में क्या क्या मुसलमानों के साथ कितने स्कीमात, कितने फायदे, क्या क्या करे हैं। एक रुबात जैसी चीज को जो सैंक्शन करके दिया गया है केसीआर साहब की हुकूमत में। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये जो डोगली पॉलिसी, ये झूठी पॉलिसी, जो धोखेबाज गवर्नमेंट है, इसको पहचानिए। आने वाले इलेक्शन में आप इनको सही सबक सिखाइए। शुक्रिया। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा एक्स रोड पर कांग्रेस लीडर अली मस्कती के बेटे की कार से हादसा, इलाज के दौरान शख्स फौत। चंद्रायन गुट्टा एक्स रोड पर एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया था जब कांग्रेस लीडर अली मस्कती के बेटे की कार ने स्कूटर पर सवार 2 मोमर राहगीरों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बुजुर्ग शदीद जख्मी हो गए थे। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान एक बुजुर्ग ने 2 अक्टूबर को इसरा हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया और दूसरे मुतासरा बुजुर्ग को भगवान देवी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहां उनकी हड्डियों में मुतअद्दिद फ्रैक्चर पाए गए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अली मस्कती का बेटा गाड़ी को खतरनाक अंदाज में चला रहा था। हादसे के बाद वो मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुकामी अफराद ने उसे रोक लिया और वाक़े की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली। अवामी हलकों ने इस वाक़े पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। उनके कोई काम वाले उन्होंने इलाज करा रहे थे, वही पूरा आज इंतकाल हो गया। बॉडी मेरी वाली साहब की लेके चले जाते बोल के बोल रहे हैं उस्मानिया हॉस्पिटल। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? फलकनुमा ब्रिज के पास वहाँ नीचे गुटे के साइड। उससे पीएस में कंप्लेंट दिया? जी भाई, उससे पीएस में कंप्लेंट दिया आप लोग? बल्लागुड़ा पीएस बल्लागुड़ा आके स्टेटमेंट लेके गए थे। मेरा वाली साहब का भी स्टेटमेंट लेके गए थे पुलिस। तो अली मस्कती के फर्जन है बोल के आप वहाँ स्पॉट पे थे? न्यूज़ में आया भाई, अच्छा। उनके फर्जन साहब भी थे। जी हो। तो क्या हो गया था? अब आपकी डिमांड क्या है? माल लगा था हमारे वाली साहब, बस साहब कुछ भी नहीं। घर के जिम्मेदार हमारे वाली साहब ही थे। हम 3 भाइयाँ हैं, इंसाफ होना साहब। तेलंगाना भर के प्राइवेट, प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेजेस 13 अक्टूबर 2025 से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करेंगे। रियासती हुकूमत के साथ ज़र-ए-अल्तवा फीस की वापसी के बकायाजात की रिहाई पर बातचीत में खराबी के बाद इस फैसले का ऐलान फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस फाटी ने किया, जो 2500 से ज्यादा तालीमी इदारों की नुमाइंदगी करता है। तनाज़े की बुनियाद हुकूमत की जानिब से वादे के मुताबिक फंड्स की तकसीम में नाकाफी है। फातेह हुक्काम का कहना है कि दशहरा के त्यौहार से कबल 600 करोड़ जारी करने की हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद हकीकत में सिर्फ 200 करोड़ रुपए जारी किए गए। इससे 1000 करोड़ की रकम ज़र-ए-अल्तवा रह गई, जिसमें दशहरा के वादे के बकाया 400 करोड़ और दिवाली से पहले रिलीज के लिए मुकर्रर करदा दीगर 600 करोड़ शामिल है। फतेह ने इन वाजिबात की अदायगी के लिए हुकूमत के लिए 12 अक्टूबर की आखिरी तारीख मुकर्रर की, जिसमें नाकाम होने की सूरत में तमाम इल्हाक शुदा कॉलेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए क्लासेस मुअत्तल कर देंगे। 1 माह से भी कम अरसे में इस तरह की दूसरी हड़ताल की धमकी। सितंबर में निजी कॉलेजों ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की थी, लेकिन इसी दिन हुकूमत ने, जिसकी नुमाइंदगी नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने की, फौरी तौर पर फंड्स जारी करने का वादा करने के बाद उसे खत्म कर दिया। रियासती हुकूमत की तरफ से निजी कॉलेजों पर वाजिबुल अदा फीस की अदायगी के कुल वाजिबात का तखमीना 8000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक है, जो कई सालों में जमा है। फीस रिम्बर्समेंट स्कीम एक अहम फलाही इक़दाम है जो SC, ST, BC, EBC और अक़लियती बरादरियों के तलबा को आला तालीम तक रसाई में मदद फराहम करता है। जारी माली बहरान ने कॉलेज के ऑपरेशंस को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। बहुत से इदारे महीनों से असातिज़ा और अमले की तनख्वाह की अदायगी के लिए जद्दोजहद कर रहे। 12 अक्टूबर की आखिरी तारीख के साथ रियासती हुकूमत का रद्द-ए-अमल इस बात का तयन करेगा कि आया तेलंगाना का आला तालीम का शोबा रुक जाता है या किसी हल की तरफ कोई रास्ता तलाश करता है।
रियासत तेलंगाना अगले 5 दिनों में गरज चमक तेज हवाओं के साथ तूफान का इम्कान, महकमे मौसमियात का बयान। तेलंगाना में अगले 5 दिनों में मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने यहाँ यौमिया मौसम रिपोर्ट में कहा है कि अगले 7 दिनों में रियासत के कुछ मुकामात पर या कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो रहा। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के देवरगुट्टू गांव में हर साल दशहरा के मौके पर मुनक्किदा होने वाले बनी उत्सव के मौके पर खूनरेज वाकया पेश आया। देवी के शादी और जुलूस के दौरान देवी की मूर्ति को अपने अपने इलाके में ले जाने के मसले पर 2 ग्रुपों के अकीदतमंद आपस में तसादुम हो गए। दोनों तरफ के भक्त लकड़ियों से एक दूसरे पर टूट पड़े। इस तसादुम में 2 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए आदोनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाजरे के देवरगुट्टू गांव में बनी उत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसमें 3 गांव के भक्त एक तरफ और 7 गांव के भक्त दूसरी तरफ से मूर्ति की हिफाजत के लिए लाठियों से लड़ते हैं। इस खूनरेज रिवायत को देखने के लिए आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से भी हजारों अफराद आते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 3 अक्टूबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। मुसलसल 3 सेशंस तक रिकॉर्ड बुलंदी पर रहने के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना दिसंबर फ्यूचर्स तो 722 रुपए यानी कि 0.61% की कमी के साथ 1,16,866 रुपए फी 10 ग्राम पर आ गया। इसी तरह चांदी दिसंबर फ्यूचर में 2,220 रुपए की कमी वाक़ई हुई और ये 1,42,500 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। ये गिरावट बुनियादी तौर पर अमेरिकी मौशी हालात और अंदरूनी अवामिल की वजह से सामने आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कटौती के ऐलान के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना मुसलसल 7वें दिन इजाफा देख रहा था, जिसका असर हिंदुस्तानी मार्केट में भी महसूस हो रहा था। ताहम हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट में भरमार और मुनाफे की बुकिंग ने कीमतें नीचे ढकेल दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा, जिसके बाद मार्केट में आर्जी इस्तेहकाम आया। इससे कबल सोना ऑल टाइम हाई 1,17,350 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच चुका था। RBI के ऐलान के बाद कीमतों में कमी का रुझान बढ़ा और जुमे को ये मुसलसल कम होती रही। मगरबी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस और इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। रैली के गुज़िश्ता हफ्ते की कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए इस बार न सिर्फ बरेली बल्कि अलीगढ़, अमरोहा, मीरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा में भी कड़ी निगरानी की गई और भारी नफरी तैनात की गई। बरेली में जिले मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्या ने नमाज से कबल पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। मसाजिद के तरफ पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। जिले मजिस्ट्रेट ने कहा कि गुज़िश्ता जुमे को नमाज के बाद कुछ अनासर ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिस पर फौरी काबू पाया गया। इसीलिए इस बार इंतजाम मजीद सख्त किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन शर पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का पंजाब सूबा बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब की शिद्दत का सामना कर रहा। एक बार फिर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों के हवाले से इंतबाह जारी किया। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के शुमाली हिस्सों में दाखिल होने वाली मगरबी हवाओं की वजह से 7 अक्टूबर तक पूरे सूबे में वसी पैमाने पर बारिश होने का खदशा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब और हलाकतों के आदाद व शुमार पेश किए। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के
मुताबिक जून के आखिर से पाकिस्तान में 275 बच्चों, 568 मर्दों और 163 खवातीन समेत कम अज कम 1006 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा सैलाब की खराब सूरत हाल की वजह से कुल 1063 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 321 बच्चे, 450 मर्द और 292 खवातीन शामिल हैं। NDMA ने पंजाब सूबे में 304 हलाकतें दर्ज की, जिनमें 110 बच्चे, 143 मर्द और 51 खवातीन शामिल हैं। अचानक आने वाले सैलाब ने वसी तबाही मचाई है। खैबर पख्तूनख्वा में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 504 हो गई, जिनमें 90 बच्चे, 338 मर्द और 76 खवातीन शामिल हैं। ईरान अपनी राजधानी तेहरान को जुनूब की तरफ शिफ्ट करने की तैयारियों में मसरूफ है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मतला किया कि उन्होंने इस ताल्लुक से करारदाद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनेई के पास भेजी है। पज़ेश्कियान ने तेहरान में मुस्तकिल बढ़ती आबादी, संगीन आबी बहरान और जमीन धंसने जैसे मसाइल को इसकी अहम वजह बताई और कहा कि इन चैलेंजेस के दरमियान मुल्क के पास राजधानी शिफ्ट करने के अलावा कोई मुतबादिल नहीं बचा। ईरानी सदर ने ये बयान हर्मज़गान इलाके का दौरा करने के दौरान दिया, जो खलीज फार्स के किनारे वाक़ है और दुबई के सामने आता है। उन्होंने कहा है कि तरक्यात और वसाइल के दबाव को देखते हुए अब इस कदम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान की तारीख में राजधानी बदलने का ख्याल कई बार जाहिर किया गया, लेकिन अब बढ़ते मसाइल और माहौलियाती दबाव उसे लाजिम बना रहे। काबिल जिक्र है कि तेहरान की आबादी अब 1 करोड़ से ज्यादा हो गई और ये ईरान के मजमूई आबी वसाइल का तकरीबन 1/4 का इस्तेमाल कर रही। पज़ेश्कियान का कहना है कि गुज़िश्ता साल बारिश सिर्फ 140 मिलीमीटर रही, जबकि आम सतह 260 मिलीमीटर है, यानी बारिश तकरीबन 50 से 60% कम हुई। रवां साल बारिश की हालत इससे भी ज्यादा फिक्र अंगेज, कुछ अंदाजे इसे 100 मिलीमीटर के करीब बता रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।